गुड इवनिंग ऑल। सो आज हम देखेंगे लाइक हाउ फ्रेशर विल राइट देयर रेज्यूमे। मेनी स्टूडेंट्स आस्क मी वन क्वेश्चन रिपीटेडली, मैम क्या ऑनलाइन क्लासेस में चीजें समझ में आती? अगर आपका प्रेजेंस ऐसा रहेगा तो डेफिनेटली ऑनलाइन क्लास कितना भी अच्छा हो आपको नहीं समझ में आए। तो कल हमने फॉन्ट साइज और अलाइनमेंट के बारे में बात की थी। आपका जो ये फॉन्ट साइज है ये टाइम रोमन में मैंने लिखा है, अगर आप देखोगे, और जो यहाँ पे अभी एडिट तो नहीं होगा। तो अभी मुझे ये पूछना है मयूरी कोमिली, अगर आपको यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव लिखना रहेगा, यू आर अ फ्रेशर एंड नाउ यू वांट टू अप्लाई इन क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री। आर यू अवेयर अबाउट व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री? एनीबडी? सोमिली, आपने कोर्स किया है? यस मैम, अभी चल रहा है। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दे प्रोवाइड क्लिनिकल रिसर्च रिलेटेड सर्विसेज। स्पॉन्सर इन्वेस्टिगेटर, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, they have a team to provide. So do you know name of anybody, any among these? Yes ma'am, IQVIA, then LabCorp, then in Bangalore SynCorp, Clean Soul. Have you seen their website? IQVIA I have seen. Basically Okay, their career page, not all the website, but yeah. So tell me one thing, whenever you are planning to go any place, do you like inquire about that place or you directly hit that place? No, obviously we should inquire before going. So why not for a job? Do you know that once you join any job, you should have to stay there at least for 1 year. Okay, it's not like that you join the job then leave that job after 1 month or after 1 day, because the process of getting the job or hunting the job is very tedious. So is it possible that you join and then leave and then again join any other organization then leave in 1 month? And if you do this kind of things, what will happen? Your resume will, but with this process you lose your loyalty also, or people or recruiter think that you are a very irresponsible person, so you cannot do this thing. So whenever you going for any interview or plan to go for any interview, you should first have to research particular companies. There are sponsor companies where you can get the job. There are contract research organizations. There are site management organizations. There are IT companies. Then there are service-based companies which is giving specifically services to specific domains also. So like regulatory affairs, then pharmacovigilance or CDM. So you should have first for any particular position, like you are saying that I just want to work on CDM, clinical data management, and you have applied in XYZ organization. Considering that that organization is not offering services in that particular domain, so do you think that HR will open your CV and see your resume and ask for another domain where they are giving services? No. See, many times, like when Canvas, or we received CVs through our portal, in our mail ID. So what happened? Many students apply particular position like drug safety associate or medical writing, or in a data management, where we are not offering services at present. So what we thought that the person who has not seen our website, they don't know about us, how they can help us to grow in this industry, or how they can offer services. Or when we hire this kind of students, they might be very casual and they are not useful for us. So whenever you are, even though you will get job in a multi-specialty hospital, wherever you are going, your CV should be accordingly positioned. Your job role, you have to mention according to particular job. So have you seen, do you know that how many job profiles are available for fresher? Yes ma'am, as a clinical research coordinator, then clinical data coordinator, then medical writer one, these are like entry level jobs I have seen. Like I don't have much knowledge, I'm still searching, but okay, I'll give you one, I'll show you one thing, just 1 second. Whatever things you are lacking or not having awareness, everything is available on social media in today's life, but you are not searching whatever you want. I don't know why. So I just help you out regarding that. What are the positions available for fresher? There is one special video we have made for a freshers who wants to enter in this industry. Entry level job profile for freshers in clinical research industry. You just search this video at Canvas Clinical Research Institute YouTube channel. Our name is also
ऑल्सो कैनवास, अगर यहाँ पे सर्च करते हो CANVASS, तो आपको ये वीडियो सर्च करने में मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें काफी सारे व्यूज है। इस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बताया कि कौन कौन से जॉब प्रोफाइल्स होते हैं। सी, अगर आपको जॉब प्रोफाइल्स नहीं पता है तो आप रेज्यूमे कैसे बनाओगे? If I'll ask you make a resume for a CRC, tell me that what are the jobs. Let's see, what if you are like pursuing any course, so you don't know why you are pursuing that course, you don't know what will the benefits of like graduating from that course. So what's the meaning of doing the course? Okay, what is the meaning of learning? Better way you will be the like just graduate, pharma graduate or life science graduate, that will be beneficial for you, because you are just wasting your precious time, because this time like you should have to utilize to grow in your career or to make a good roadmap for your career, and you are just wasting that time, because after getting like learning, pursuing this course, if you cannot get any benefit from this course, so what's the use of pursuing the persuasion of this course? Okay, so my concern is that if you, and what recruiters thought that if like Saurabh has certificate M, so recruiter thought that he must aware about the job profile, at least theoretically he must know the guidelines. Okay, so if you are not aware about these things, there is no use of having the certificate, page of certificate in your hand, because no one is interested in that certificate. Everyone is interested in knowing that what you know about the industry. Okay, so first you should know, like if you want to make a good resume, you should know the job profiles, you should know the industries, and that you should know where to apply. So if I ask you, what are your preferences, Saurabh, when you apply in clinical research industry, or anybody can answer me, what will be your preferences if currently you are pursuing the course? Just after completion the course, what will be your preferences? On what basis you will apply? Like what are the criteria in your mind that you will apply? Do you have any criteria? Yes, Saurabh, on your mic while speaking. Do you have criteria? How you will like? How do you know that wherever you are going, this company is good for you? We are living in a social media era. Okay, information get very easily. Then also, if we are behaving like that, this is not for you. Okay, मतलब अगर हम ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि हाँ मैं क्यों इन्फॉर्मेशन निकालूं, so अगर हम इन्फॉर्मेशन नहीं निकालते तो क्या होगा सौरभ? जैसे आप ज्वाइन करोगे, आपको ये पता चलेगा ये आपके लिए बेस्ट है करके, और यही जॉब आप ढूंढ रहे थे। What is your criteria to join the job or join the organization? अच्छा, आपको अभी अप्लाई करा, आपने B.Pharm किया, उसके बाद आपने कोर्स किया कि हाँ मुझे क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में ज्वाइन करना है। तो क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में तो बहुत सारे कंपनीज है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है, तो आप अपने आप को कहाँ, पहला जॉब आप कहाँ देखोगे? एज एंट्री लेवल। हाँ, एंट्री लेवल पे भी तो बहुत सारे हैं, जैसे एंट्री लेवल पे भी 7-8 पोजीशन है, तो कौन से कंपनी में और कौन से जॉब के लिए? एज एंट्री लेवल क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर। व्हाई क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर? व्हाई नॉट ड्रग सेफ्टी एसोसिएट? व्हाई नॉट ETMF स्पेशलिस्ट? व्हाई नॉट डेटा एनालिस्ट? व्हाई नॉट डेटा कोऑर्डिनेटर? व्हाई नॉट एथिक्स कमेटी कोऑर्डिनेटर? सी, आप अभी आपके पास टाइम है सौरभ, एंड यू लाइक इट्स नॉट लाइक दैट व्हाट हैपन, क्या होता है अगर आपने मतलब रिसर्च नहीं किया, सो यू विल जॉइन एनी ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू गेट द चांस, लाइक यू विल अननोइंगली हिट योर एप्लीकेशन इन एनीवेयर, एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू जॉइन। तो ऐसा हो सकता है कि आप मतलब ऐसी जगह जाके फंस जाओ जहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है? या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा जॉब लगे, बट यू डोंट नो, और यू डोंट नो योर गोल, यू डोंट नो योर ड्रीम, यू डोंट नो व्हाट यू वांट टू डू, सो अब वहां जाके भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो क्या हो जाएगा, जैसे आप ज्वाइन करोगी आप कुछ और देखना शुरू करो। आप भी जिस फेज में जहां जाके आपको लर्निंग करना चाहिए था, जॉब प्रोफाइल के बारे में समझना था, उस प्रोसेस के बारे में समझना था, या वर्क क्या होता है, बिजनेस कैसे जनरेट करते हैं, रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, उस टाइम में आप क्या करोगे, आप दूसरा जॉब देखना शुरू करोगे, बिकॉज यू आर नॉट सेटिस्फाइड वॉट एवर यू आर गेटिंग, बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट व्हाट यू वांट एग्जैक्टली। सो इन दिस वे you are again wasting your time. Already you wasted your time while like pursuing the courses. Then after pursuing the courses, you just land up one job to second job to third job, one by 1 year. Okay, so what will happen, जैसे आपको 5 साल हो जाएगा आपके CV में दिखेगा, या फिर आप एक जगह ऐसे भी जगह मतलब आप
नहीं छोड़ा, आपने एक जगह ही रुके, बट आपकी ग्रोथ कुछ नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं था आपको सीखना क्या है। नेक्स्ट पोजीशन के लिए ग्रो करने के लिए आपको सीखना क्या चाहिए यही नहीं पता, और 5 साल के बोलोगे यार क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में तो ग्रोथ ही नहीं है, सैलरी कुछ अच्छा मिलता नहीं है, आई एम गेट स्टक ओवर हियर, अब मैं क्या करूं। फिर मैं कोई आपका फ्रेंड या सीनियर बोलेगा यहाँ जा, ये इंस्टीट्यूट आपको ना आगे के लिए ये करता है, फिर आप उनका सुन के आप कहीं और एडमिशन लोगे या किसी के पीछे पड़ोगे कि हाँ मुझे वहां पे हायर करवा दो। सो इन दिस वे अगर आपके गोल क्लियर नहीं है, तो इसलिए जब आप कोर्स कर रहे हो, अभी आप कोर्स कर रहे हो, तो अभी जब आप मिलते हो फैकल्टी से, तो आपका ये काम है कि सर मुझे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, लाइक मेरा प्रिपरेशन क्या है ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो वो आपको आपके वाइवास में पता चलेगा, जब आपको कोई क्वेश्चंस करेगा या फैकल्टीज आपको कुछ पूछती है, या फिर आपको जैसे आपके यूनिट टेस्ट होते हैं तो उसमें जो आपको पूछा जाता है उससे आपको पता चले अच्छा ये मुझे नहीं आता। अच्छा सीआरसी का जो हॉस्पिटल में रहता है उससे मुझे क्या पता चलेगा अगर मैं वो जॉब करता हूँ, अगर मैं ईटीएम स्पेशलिस्ट का जॉब करता हूँ तो मुझे क्या पता चलता है, उसके बाद का क्या जॉब रोल मिल सकता है, सीआरसी होने के बाद का क्या मिलेगा, क्लिनिकल ट्रायल असिस्टेंट जॉब अगर मैं करता हूँ तो उसके बाद मुझे, तो इसके लिए तो आपको जब आप क्लास करते हो तो ये सारी पोजीशन हम 10-15 बार बोलते हैं, रिपीट होती है हर एक जन। जैसे आपको अगर पीवी का क्लास होता है तो फैकल्टीज, ड्रग सेफ्टी एसोसिएट, फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट, ये नाम बहुत बार आप ये तब आपको लिखना चाहिए। अब ये रिसर्च का इतना बड़ा रोल कॉल है आपके रोड मैप में जितना आप सोच भी नहीं सकते, और ये अगर टाइम आप अच्छे से यूटिलाइज नहीं करोगे ना, डेफिनेटली आपको बहुत प्रॉब्लम है। तो सौरभ ये करना शुरू करो अभी से, एंड आफ्टर 3 मंथ्स आपका डिसाइडेड होना चाहिए। अब आप सीवी बनाना शुरू करोगे, आपको जॉब प्रोफाइल पता चलिए, आप रिसर्च कैसे करोगे। सी अगर मेरा प्रिपरेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो इज देयर एनी रोल और इज देयर एनी सेंस कि मैं नंबर 1 कंपनी में अप्लाई करूं जहाँ पे एक क्राउड 10,000 रहने वाला है, कैन आई बीट दैट कॉम्पिटिशन? तो यही चीज हमें सोचनी चाहिए। सी मुझे कभी भी ऐसी जगह घुसना ही नहीं चाहिए जहाँ ऑलरेडी बहुत कॉम्पिटिशन है, क्योंकि इंडिया में क्या है, इंडिया में जॉब कैसे लगते हैं, जॉब प्लेस पे होता क्या है इंडिया में, ऐसे जगह मतलब अब अगर जैसे कोई बोल दे कि यहाँ पे वैकेंसी है और वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल, समझ लो बहुत रिनाउंड हॉस्पिटल है और वहां पे किसी पोजीशन के लिए वैकेंसी, समझ लो एम्स के लिए, सब लोग बस एम्स का नाम सुन के ही उस पे कूद जाएंगे, ये नहीं देखेंगे कि रोल कॉल क्या है, सैलरी कितनी है। सेम वे हम मतलब अगर जैसे समझ लो XYZ एक रिनाउंड कंपनी है, उसमें रेगुलेटरी अफेयर के लिए वैकेंसी, बट मुझे रेगुलेटरी अफेयर का कुछ भी नहीं समझता ना, मैं वो कंपटीशन के लिए मेरा इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा है ना, मेरा प्रिपरेशन है, एंड मैं जा रहा हूँ ऐसे बायोडेटा लेके, डू यू थिंक दैट यू विल गेट सिलेक्ट बाय द HR? नहीं। और फिर आपको एक ये भी आएगा, डिमोटिवेशन भी आएगा, यार मैं तो गया था बट मैंने नहीं, मेरा नहीं हुआ, और उसका हुआ जो बिल्कुल होता है, ये आप ही ये कर लेते हो। So you are not the authorized person to assume or give the remarks to other person how his preparation or her preparation. So better way first understand करो मेरा preparation कितना है। समझ लो आपका बिल्कुल भी preparation नहीं है, आपका कोर्स भी नहीं है, आप कोर्स भी नहीं कर सकते, आपके पास पैसे भी नहीं है, और आपको अब जॉब चाहिए, आप क्या करोगे? एंड आपको फर्स्ट फोकस आपका किस पे होना चाहिए, लाइक व्हाट विल हैव, मतलब फर्स्ट आपका नेटवर्किंग होना चाहिए या नॉलेज होना चाहिए, और क्या what my perception is that first you should have the focus on networking, because knowledge ऐसे एक दिन में तो नहीं आएगा, वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, आपको टाइम लगेगा। सो आप अभी आपका प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं है एंड आपको कोई जॉब भी नहीं देगा विदाउट प्रिपरेशन, और आप इतना भी प्रिपरेशन नहीं है कि आपको एटलीस्ट कुछ एंट्री लेवल का जॉब प्रोफाइल मिल पाए। तो बेस्ट वे, ज्वाइन एनी इंटर्नशिप इन एनी हॉस्पिटल्स और एनी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर मेनी स्पॉन्सर्स व्हिच आर गिविंग अनपेड इंटर्नशिप। अब व्हाई अनपेड? सी you are burden for them, like one if you join internship, आप उनके जोन में जा रहे हो, तो आपकी सिक्योरिटी, आप के साथ लोग कैसे रहेंगे या आप उनके साथ कैसे रहोगे, इसके लिए उनको सारा मतलब देखना पड़ेगा। प्लस आपको उनको थोड़ा कुछ भी मतलब जो प्रोसेस है आप बार बार जाके उनको पूछोगे, या जो भी लाइन मैनेजर है उनको पूछोगे, तो वो चीजें उनको बतानी रहेंगी। उसके बाद वो श्योर भी नहीं कि आप उनका ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने वाले हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि 3 मंथ्स बाद और 6 मंथ बाद आप शायद वो ही पोजीशन पे काम करना चाहोगे, हो सकता है आपको तब तक नॉलेज आ जाए, आपका कोई इंटरेस्ट और रहे। सो दे आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग अबाउट यू, सो व्हाई शुड दे विल पे यू? ओके,
सो इन दिस एस्पेक्ट यू शुड हैव टू थिंक। बट हाँ, उससे क्या होगा, अगर समझ लो आप कोई हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं, प्रोसेस पूरा देखने को मिलेगा कि भाई किस तरह से क्लिनिकल ट्रायल्स होती है। यू कैन विजुअलाइज ऑल द थिंग्स, मतलब सारी चीजें आपके सामने होगी। सो वो एक बेनिफिट है। अगर आप स्पॉन्सर कंपनी या CRO ज्वाइन करते हो, इफ यू आर रिसाइडिंग एट बेंगलोर एंड मुंबई, तो आपके लिए बेनिफिट ये रहेगा कि वो लोग कैसे बात करते हैं लोगों से, वो लोग कैसे एडमिन सपोर्ट करते हैं या डॉक्यूमेंटेशन वो कैसे मैनेज करते हैं, TMF कैसे करते हैं, TMF क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको देखने में मिलेंगी जो आप पढ़ नहीं पाए हो। तो बहुत सारे लोग विजुअल चीजें जब देखते हैं और ये रिसर्च भी बोलता है कि जब हम देखते हैं तब हम ज्यादा कैप्चर कर पाते हैं जितना हम सुनते हैं। तो इट्स ओके, चलो हम नहीं समझ पाए थ्योरेटिकली, हमने प्रैक्टिकली देख लिया। अब 3 मंथ्स में आप बहुत सारे ऐसे लोगों को मिलोगे जो क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। So it might be CRA, it might be member secretary of ethics committee, it might be CRCs, और so आपको एक एक्सपीरियंस आएगा उन लोगों की बातें जब आप सुनोगे कि वो लोग क्या सोचते हैं, वो लोग कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं या आप उनके से कैसे हेल्प कर सकते हो। तो रादर देन सिटिंग होम बाय सेइंग कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा था इसलिए मैं नहीं जा रहा, तो इंटर्नशिप से आपका मोटिव ये होना चाहिए नेटवर्किंग। आपका नेटवर्किंग इतना स्ट्रॉन्ग, और मैंने देखा है जो भी लोग बहुत अच्छा इंटर्नशिप करते हैं और जहाँ करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से उनको ऑफर आता ही है। सो दैट इज द बेस्ट वे कि आप अगर ज्वाइन करते हो इंटर्नशिप तो आपको ये बेनिफिट्स विजुअल कर सकते हो चीजें सारी, एंड सेकेंड थिंग आपको ये भी पता चल जाएगा, नेटवर्किंग बहुत अच्छा होगा। आप जो लोग आपको जॉब देते हैं उन लोगों से आप मिलोगे, ऐसे आपको नहीं पॉसिबल, क्योंकि आप कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर सकते हो, लिंक्डइन पे आप उतने अच्छे से बात नहीं कर पाओगे। सो दिस इज द वन बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। इवन अगर आपको नहीं इंटर्नशिप नहीं पता चल रही है तो और उससे अच्छा इजी वे, आपके एरिया में जो भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है सब जगह क्लिनिकल ट्रायल चल रही है, एटलीस्ट मेट्रो सिटी में, आप उनके वहां जाके आपका CV दे सकते हो और वहां डाल देना कि अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप। ये मत बोलो कि मुझे CRC जॉब चाहिए, मुझे तो कुछ आता है। हमेशा ये चीज सोचो कि क्या तुम दे रहे हो जो तुमको आगे वाले से मिले। सो आगे वाला अगर तुम इतने कॉशियस हो तो वो डेफिनेटली तुमको जरूर हेल्प करेगा वो इंटर्नशिप देने, क्योंकि तुम उनको परेशान तो नहीं कर रहे हो। आप बोल रहे हो भाई मुझे आने दो बस 10 से 6 या जो भी आपका टाइमिंग है, मैं उस टाइमिंग में आके आपसे, तो दिस इज फर्स्ट आप ये एक चीज है। तो सबसे पहले आपको कंपनीज का रिसर्च करना है, देन आपके गोल्स क्या है वो आपको पता होना चाहिए, आप ये सारी चीजें लिखो। और थर्ड थिंग, आपको जॉब प्रोफाइल्स पता होने चाहिए जो एंट्री लेवल, जो भी बच्चे अभी जस्ट ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है जिन्होंने कोर्स जस्ट किया है उनको एंट्री लेवल जॉब प्रोफाइल्स ही मिलेंगे। अब आपको नॉलेज क्या क्या होना चाहिए एटलीस्ट एंट्री करने के लिए, तो आपको प्रोटोकॉल बहुत अच्छे से समझना चाहिए। प्रोटोकॉल आप जब रीड करते देखते हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हाँ इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज क्या होते हैं, विजिट्स कैसे परफॉर्म है, वो चार्ट समझना चाहिए। इसेंशियल डॉक्यूमेंट सारे समझने चाहिए बिफोर, ड्यूरिंग एंड क्लोज आउट के। आपको TMF और ISF अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए, और उसके साथ आपको गाइडलाइंस पूरी अप्लाई करनी आनी चाहिए। ICHGCP है, और ICHGCP का फर्स्ट प्रिंसिपल है कि एथिक्स कमेटी का जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टू राइट सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ पेशेंट। तो एक्चुअल क्या करती है एथिक्स कमेटी ये सब चीजें मेंटेन करने के लिए, तो वो आपको समझना चाहिए। सेकेंड थिंग, सारे जो स्टेक होल्डर्स है उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझने चाहिए और उनके रिप्रेजेंटेटिव, बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर वन ऑफ देम। जो भी स्टेक होल्डर्स, आप या तो इन्वेस्टिगेटर के लिए काम करोगे, SMO के लिए काम करोगे, स्पॉन्सर के लिए काम करोगे, इसी के लिए। तो अगर उनके रोल्स आपको नहीं पता है तो यू कैन नॉट वर्क। तो एटलीस्ट कोर्स करने के बाद, या फिर अलग जो डोमेन है, हर डोमेन का प्रोसेस है, क्लिनिकल ऑपरेशन का डोमेन है, अच्छा आप क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट का प्रोसेस है, तो वो प्रोसेसेस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये चीज आपने कोर्स करके अगर आपको समझ में आती है, सो देन इट इज वर्थ कि आपने कोर्स किया है, और एल्स इट्स एवरीथिंग इज इन वे। तो ये हुआ, आपको जॉब प्रोफाइल्स पता है, अपने कंपनीज का, जैसे आपका अगर प्रिपरेशन नहीं है तो आप इस तरह से अप्लाई करोगे। सेकेंड थिंग, अगर आपका बहुत strong preparation है, you have a knowledge of all the things, your communication skill is very good, then you can beat the competition, you can apply anywhere, any organization. But now think on that, like pharmacovigilance है, उसमें नाइट शिफ्ट रहेगा, so can you work on night shift in a high pressure
in a timeline, very limited timelines? Can you work on that timelines? Can you work in a hectic schedule कि आपको सैटरडे भी बुलाया, संडे भी बुलाया? क्योंकि बिकॉज अगर ज्यादा केसेस रहेंगे तो मेनी ऑर्गेनाइजेशन आपको सैटरडे संडे काम पे बुलाते, तो आपका मोटिव क्या है? इफ यू हैव एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट गो फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब। अगेन जहाँ पे लाइक लार्जर ऑप्शंस है वहां पे आपको जाना चाहिए, उस सेगमेंट में जाना चाहिए रादर देन हैविंग अ लिमिटेड ऑप्शंस। सो बहुत बार बच्चे मेरे पास आते हैं मेडिकल कोडिंग, मेडिकल राइटिंग, तो डू यू थिंक दैट इन इनिशियल स्टेज यू हैव टू एंटर इन दिस डोमेन, यू डोंट हैव एनी नॉलेज? तो ये सब चीजें, ये पैरामीटर्स आप रख के आपका गोल बनाओ कि हाँ मुझे इसमें जाना है, मुझे ऑपरेशन में जाना है, एंड देन यू स्टार्ट टू मेक योर सीवी। तो अभी आपको ये सारी चीजें पता है, ये कंसिडर करते हुए अब हम आगे सीवी कैसे बनाना है ये देखें। तो ये एक फ्रेशर का सीवी है। एज अ विजय भक्ते जब फ्रेशर थी तो वो कैसे सीवी बनाएंगी, या एज अ विजय भक्ते अब मैं अप्लाई करूंगी फ्रेशर तो कैसे? सो कंसिडरिंग दैट आई हैव कंप्लीटेड माय बी फार्म एंड डन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च, एंड नाउ ये 2008 का सिनेरियो है और मैं अप्लाई करी। तब तो सी जब भी इंडस्ट्री, जैसे कोई नई इंडस्ट्री आती है एंड डे बाय डे ग्रेजुअली इंडस्ट्री इवॉल्व होती है, तो इंटरव्यूज पैटर्न चेंज होते हैं, डिमांडिंग इंडस्ट्री जितना सैचुरेशन आने लगता है उतना इंडस्ट्री डिमांडिंग होती है। सो फर्स्ट जो हायरिंग हुआ रहता है फर्स्ट बैच का वो कुछ अलग टाइप का होता है सेकंड बैच का। सो आई मीन सेकंड बैच। अभी जो आप जो हो ये वो आप फोर्थ या फिफ्थ बैच में रहोगे। लाइक इंडस्ट्री 2000 में इंडिया में आई, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली इवॉल्व होते गई है। अब क्या रहेगा, लाइक ये मेरा मतलब परमानेंट एड्रेस और मेरे नंबर्स वगैरह है। अभी मैं मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? कैन एनीबडी सजेस्ट माय ऑब्जेक्टिव? एज अ फ्रेशर आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? To gaining the knowledge and experience. Gaining the knowledge and experience. गेनिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। मुझे बताओ आपके नॉलेज और एक्सपीरियंस के लिए वाई, मतलब आप गेन करोगे तो आपको कोई पे क्यों करेगा? यू आर अप्लाइंग फॉर मतलब नाउ सैलरी। आपका एम ये रहेगा विदाउट, अगर वो आपको ठीक है इंटर्नशिप आपने कर लिया विदाउट पे, बट आप ये तो नहीं करोगे, तो आपका क्या होना चाहिए लाइक जिससे आपकी पर्सनालिटी या आपके बारे में आगे वाले को पता चले। फ्रेशर फार्मेसी ग्रेजुएट विद बेसिक नॉलेज ऑफ क्लिनिकल रिसर्च डोमेन्स व्हाई आई हैव सेड दैट कि हाँ मुझे, जैसे मैंने पीजीडीसीआर कोर्स किया तो आपने सारे ही डोमेन के बारे में पढ़ लिया है, दो आपका ग्रास्प पूरा नहीं हुआ है, पूरा अंडरस्टैंडिंग 100% आपको नहीं आया, बट आप थ्योरेटिकली पढ़ चुके हो सकता है 10-15 दिन का, महीने भर का, 3 महीने का ऑन मतलब एक्चुअल वर्क पे आपको एक्सपीरियंस मिल जाए तो आप इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हो विदाउट असिस्टेंट। सो दैट बेसिक नॉलेज लिखा है मैंने। देन अब ये मेरी बात है, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स, और जो मुझे पता है कि ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बहुत जरूरी है, ये सारे एंट्री लेवल जॉब प्रोफाइल्स के लिए। एंड ये भी है कि अगर आप ऑर्गेनाइज हो तो इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो, क्योंकि सीआरसी एट ए टाइम एक काम नहीं करता है, ड्रग सेफ्टी एसोसिएट एट ए टाइम एक ही केस ये नहीं करता है, बहुत सारे अलग अलग केसेस उसको सॉल्व करनी रहती है या उस पे काम करना रहता है। तो अगर ऑर्गेनाइज है कोई और उसको पता है कि कैसे उसका काम करना है इन 8 आवर्स, तो वो इंसान इस इंडस्ट्री में काफी अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो ये होता है मेरा रिसर्च, ये मुझे पता है कि हाँ इंडस्ट्री में इस तरह से लगती है। अभी मैंने कैसे लिखा, फ्रेशर फार्मेसी ग्रेजुएट विद बेसिक नॉलेज ऑफ क्लिनिकल रिसर्च डोमेन एंड स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स, वेरी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन वांट्स टू एंटर इट। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। ओके, व्हाट माय पॉइंट, हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा क्लियर होना चाहिए। हम कुछ लर्निंग के लिए नहीं, हम कुछ जब जॉब करते तो हम देने के लिए, वी आर लाइक गिविंग योर सर्विसेज टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पता चल रहा है आगे वाले को कि मेरा लेवल क्या है। देन मैं सिंपल, मेरा अभी ऑब्वियस मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं मेरा क्वालिफिकेशन लिखूंगी जो हाईएस्ट है, लाइक जो सबसे हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मैं ऊपर लिखूंगी। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च, देन मैंने फार्मेसी किया है। साइड में ईयर डालना बहुत जरूरी है, परसेंटेज इतना ही लिखना जरूरी है। आपका कॉलेज नहीं, आपका क्वालिफिकेशन। आप अगर आप यूनिवर्सिटी भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते। उसके बाद आपने, जैसे हम लोग बी फार्म में तब तो कोई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं रहता था, अभी अगर आपने प्रोजेक्ट किया है तो एक शॉर्ट मतलब 5-6 लाइन का आपको उसके डिटेल्स लिखने चाहिए। और अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत ही मतलब अच्छा प्रोजेक्ट था और वो समझो समहाउ फार्माकोलॉजी या लाइक ह्यूमन सिस्टम या ऐसे कुछ लाइक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो आपको उसके और अच्छे से डिटेल डाल सकते हो। और अगर आप रिलेट कर सकते हो करंट जॉब प्रोफाइल के साथ, मतलब उसका क्या बेनिफिट रहेगा, तो आप वो भी डाल सकते हैं। इनकेस अगर ऐसा नहीं है तो शॉर्ट
मतलब डिटेल्स डालो। और ये रेडी रखो कि अगर लाइक समझ लो आपका टेक्निकल राउंड में अगर वो बंदा भी एम फार्म वगैरह है या बी फार्म है और उसने आपको डिटेल्स पूछे तो आपको अच्छे से बताना आना चाहिए। अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं किया, आप एमएससी और अदर बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो जिसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं होते हैं, या फिर आप बीएससी स्टूडेंट्स हो, तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज डाल सकती हो। अब मैं यहाँ पे क्या डालूंगी जो ये शो करेगा हाउ ऑर्गेनाइज पर्सन आई एम, और मैंने जो मेरा बताया इंटरपर्सनल स्किल्स है, तो ऑब्वियस मैंने मेरे क्यूरिकुलम के दौरान मतलब लाइक मेरे एजुकेशन के ड्यूरिंग कुछ तो ऐसा किया होगा जो मेरे ये स्किल्स शो करता, तो मैं वो चीजें डालूंगी, या तो प्रोजेक्ट डिटेल्स या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या फिर अचीवमेंट्स भी डाल सकते हो। आपको कोई अवार्ड मिला है, अपने गैदरिंग में कोई ऐसा चीज की है, आपने कोई ही स्पीच दिया है, so that will also show your interpersonal skills। तो ये आप डालोगे। अब आपके प्रोफेशनल स्किल्स क्या आएंगे? Being a fresher, so professional skills में now I am writing as I am a fresher। बहुत बार मुझे ना फ्रेशर्स क्वेश्चंस करते कि मैम हम क्या लिखें, so अभी जैसे मैंने मेरा ऑब्जेक्टिव में ही लिखा है बेसिक नॉलेज, तो यहाँ आप डाल सकते हो कि कौन से डोमेन का आपको बेसिक नॉलेज है। एंड आपको बताओ अगर कोई भी फ्रेशर को मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ, टेल मी द इंटरलिंक बिटवीन और अमंग द ऑल डोमेन्स, तो किसी को भी इसका आंसर नहीं आता है। इफ यू हैव डन कोर्स इन अ राइट मैनर, आपको इसका आंसर आना चाहिए। एंड इफ यू राइट दिस थिंग्स, इट्स अ बिग डील फॉर अ रिक्रूटर कि बाप रे इसको समझता है ये चीज। देन गुड नॉलेज ऑफ ह्यूमन सिस्टम, डिसीजेस एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ मेडिसिन, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बिकॉज अगर आपको ये चीज समझती है तो यू कैन बी द गुड पर्सन टू अंडरस्टैंड प्रोटोकॉल एंड हैंडल इन्वेस्टिगेटर। और क्योंकि डॉक्टर्स को ये सारी चीजें पता होती है, आपको ये चीजें पता नहीं है, तो यू कैन मेक द ब्लंडर्स, तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट रहेगा। देन गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक प्रोटोकॉल, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, एनडीसीटी 2019, दिस इज द गाइडलाइन विच इंडिया इज यूजिंग। देन आईसीएचजीसीपी, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है कि हाँ यू आर अवेयर अबाउट, और उससे आप बता रहे हो अपडेटेड चीजें भी आपको अच्छे से पता। कैन प्रिपेयर और एबल टू वर्क ऑन वर्ड, पीपीटी, एक्सेल, तो ये पता है जैसे अगर आप रेगुलेटरी में हो और अप्लाई कर रहे हो और आपको सबमिशन में काम करना है, तो आपको ये सब चीजें क्योंकि आपको लिखना ही है, आपको उसी का पेजिनेशन ही करना है, तो ये अगर आपको आता है तो इट्स ऑल्सो गुड थिंग। गुड कमांड और नॉलेज ऑफ हैंडलिंग लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, ये भी आप लिख सकते हो। सो यार यू आर यूज्ड टू वर्क ऑन लैपटॉप, और ये पता चलेगा। देन 5th पॉइंट रहेगा हैव अवेयरनेस ऑफ डेटाबेस। लोगों को डेटा और डेटाबेस का डिफरेंस नहीं समझता है एंड देयर यूज, सो लाइक मेडिडेटा, अर्गस, ये नाम आपको पता है, ये भी बहुत बड़ी बात है और ये बहुत फेमस डेटाबेस है जो कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम यूज किए जाते हैं आज के डेट में क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में, तो ये एक मतलब बिग एसेट रहेगा आपके लिए। देन हैव द नॉलेज ऑफ डिस्क्रिपेंसी मैनेजमेंट एट साइट लेवल एंड स्पेसिफिक डेटाबेस। अब डिस्क्रिपेंसी मैनेजमेंट उन लोगों को पता होगा जो सीडीएम का पढ़ाई कर चुके हैं और जो सीडीएम में एंट्री करना चाहते हैं, एग्जैक्टली डिस्क्रिपेंसी क्या होता है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन अगर सामने वाला करता है, उसका अगर आप प्रॉपर आंसर करते हो तो यू विल गेट डेफिनेटली मतलब 100% चांस टू गेट सिलेक्टेड बाय पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। और आप अब जैसे कोई स्पेसिफिक जॉब के लिए लाइक ड्रग सेफ्टी एसोसिएट के लिए जा रहे हैं, तो उससे स्पेसिफिक कोई चीजें आपको पता है तो आप डाल सकते हो, या फिर आप रेगुलेटरी अफेयर के लिए जा रहे हो मतलब जो, या ईटीएमएफ के लिए जा रहे हो, तो और आप इसमें और चीजें जॉब स्पेसिफिक डाल सकते हो। उसके बाद अब आप क्या डालोगे, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है। तो आपके स्ट्रेंथ ऐसे होने चाहिए जिस जॉब प्रोफाइल के लिए आपने अप्लाई किया उस जॉब प्रोफाइल के लिए सुटेबल होने चाहिए। तो आप डाल सकते हो बिगेस्ट एसेट इज रेडी टू अनलर्न, लर्न एंड रीलर्न। मतलब यहाँ पे आप बता रहे हो आई एम सो मच लाइक कंफर्टेबल पर्सन टू बिकम अनकंफर्टेबल एंड देन अगेन आई कैन मेक माई सेल्फ कंफर्टेबल। ये बहुत बड़ा क्वालिटी होता है बिकॉज पीपल डू नॉट वांट टू बिकम अनकंफर्टेबल। अगर कोई ऐसा सिचुएशन जाता है वो लोग रिफ्रेन होते हैं काम करने से। तो अगर आप बोलते हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, दैट मीन्स यू आर लाइक वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन, ये आप आगे वाले को बता सकते हो। अगर समझो आपको स्ट्रेंथ नहीं पता है या आप नहीं लिख पा रहे हो, आप ये अवार्ड्स एंड एक्लॉइड्स ये भी डाल सकते हो आपको जो आपके क्यूरिकुलम में आपको मिली है लाइक आपके कॉलेज लाइफ में वगैरह। Then accept challenges and work at any circumstances। मतलब यहाँ बता रहे कि I can do anything in any work culture, मैं काम कर सकता हूँ।
अगेन मैंने जैसे बोला है कि हाँ मेरे पास इंटरपर्सनल स्किल है, तो मैं कैसे माई इंटरपर्सनल स्किल्स एंड मेथोडोलॉजिकल बिहेवियर मेक्स मी इंडिफरेंट अमंग अदर्स। यहाँ आप बता रहे कि क्या ऐसी क्वालिटी है जो आपके वर्क के लिए और बाकी लोगों से आपको अलग करती है, सो दैट आपको जो भी काम दिया जाएगा आप कितने अच्छे से कर पाओगे। ये एक सेंटेंस है आप आगे वाले को बता रहे। सो दिस शोज दैट यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट, एंथुजियास्टिक, पॉजिटिव एटीट्यूड अप्रोच वाले इंसान हो, और यही एज अ फ्रेशर से यही सारी चीजें रिक्रूटर्स देखते हैं। देन आप अपने पर्सनल डिटेल्स में जितना डिटेल्स आपके है, लाइक आपका घर का एड्रेस, मदर का नेम, मतलब लाइक फादर का नेम, मदर का नेम, परमानेंट घर का एड्रेस, इन केस अगर आपको कुछ मतलब वेरिफिकेशन के लिए या कुछ वो लोग कुरियर करते तो वो आपके घर के एड्रेस पे आना चाहिए। ये है उसके पीछे का मोटिव, अगर परमानेंट एड्रेस आप। एंड नीचे में नेम आपका, मतलब जिस दिन आप सीवी, जिस दिन आप जा रहे हो या जिस दिन आप सीवी भेज रहे हो उस दिन का डेट एंड प्लेस आपको डालना है। तो आपने देखा इसका अलाइनमेंट एक आप जो है वो सबका एक जैसा ही है, फॉन्ट साइज एक है, काफी बहुत ज्यादा लिखा नहीं है और बहुत ज्यादा ऐसा नहीं दिखा है कि आपको आता है ना नहीं आता है। तो इस तरह से ही आप अगर सोचोगे यार इसमें तो बहुत कुछ नहीं लिखा है, बट इसमें जितना लिखना चाहिए था, जितना HR का या रिक्रूटर का एक्सपेक्टेशंस होता है फ्रेशर से, वो सारी चीजें इंक्लूड की। अब आप क्या करते हो बहुत ज्यादा टाइम कि अरे मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ जो मेरा सिलेक्शन, और आप इधर उधर का टोपो मार के लिख देते हो और जब इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है वो आता नहीं। सो बेटर वे उतना ही लिखो जितनी आपकी पर्सनालिटी शो कर सकती है और जितना आपको आता है। एक्स्ट्रा की चीजें बिल्कुल कभी भी नहीं लिखनी चाहिए जो आपको नहीं आता। ठीक है, ये हुआ। अभी समझ लो आप कुछ एक्सपीरियंस हो, जैसे अभी आपको किसी और डोमेन का एक्सपीरियंस है, आपको वो चीज डालनी है बट बस 1 या 2 सेंटेंस में, और उसके कारण आपके सॉफ्ट स्किल्स में, पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस है वो आप डाल सकते, और उसका कितना एक्सपीरियंस था आपको, लाइक 1 ईयर 2 ईयर, वो भी आप अपने ऑब्जेक्टिव में मिक्स कर सकते हैं। तो ये हुआ। बट अगर आपको रिलेवेंट एक्सपीरियंस, लाइक आपको CDM का ही एक्सपीरियंस है और आप अब नेक्स्ट स्टेज के लिए जा रहे हो, आपने अपने या अपने इंटर्नशिप के बाद कहीं अप्लाई किए, तो उस इंटर्नशिप में आपने क्या सीखा और फिर आप ऑब्जेक्टिव उस तरह से बनाओगे। आपने कहाँ इंटर्नशिप किया, आपका क्या जॉब रोल था, एग्जैक्टली आपने क्या चीजें सीखी, वो भी चीजें डाल सकते हो। तो तब आपको प्रोजेक्ट डिटेल्स थोड़ा कम डालना पड़ेगा या नहीं डालोगे चलेगा, उसके जगह आप वहां पे आपका इंटर्नशिप के डिटेल्स डालोगे, और उसको बहुत, क्योंकि दैट टाइम यू आर नॉट फ्रेशर, एटलीस्ट आपने इंटर्नशिप किया है, यू नो ऑल द थिंग्स, आप अपने CV को वेटेज दे सकते हो। आपको हमेशा ये चीज सोचनी है कि हाउ आई गिव वेटेज टू माई पर्सनैलिटी, टू माई CV, टू हाउ आई कैन गिव जस्टिस टू पर्टिकुलर पोजिशन जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो ये सोच के आपको CV लिखना, और ऐसा CV कोई नहीं बनाता। आप खुद अगर देखोगे आपके फ्रेंड्स के CV, तो इसमें अगर आपका CV ऐसा रहेगा, ये बहुत रिलेवेंट है आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करने वाले, और इसमें बहुत सारी चीजें आपने बताई है कि आप कितने नॉलेजेबल हो, आपको कितना अवेयरनेस है पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए। अब आप मुझे बताओ, क्या आपको 15-20 हजार भी नहीं मिलेंगे अगर आप ऐसा CV बनाओगे? डेफिनेटली मिलेंगे आगे वाला आपको, और आपको अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है तो आपको अच्छा सैलरी, अच्छा पैकेज मिलेगा आपका, मतलब ऐसा आपको बहुत कम कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपको बहुत कम हर्डल्स आएंगे ग्रो होने के। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? समझ में आया अभी CV कैसे बनाना है? Ma'am, we will get the internship from the Canvas. हाँ, Or we have to search out. नो, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको बस जो पढ़ाई दी है वो आप करो। हम आपके लिए इंटर्नशिप को प्रोवाइड करेंगे, आपको इंटर्नशिप करनी रहेंगी। तो अगर आपका परफॉर्मेंस, देखो मेरा ये है कि अगर लर्निंग फेज में आप अच्छे से चीजें सीखते हो तो आप आगे आपको तकलीफ नहीं होगी। तो हमारा ऐसा कि कुछ लोगों का मतलब बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लाइक उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बहुत अच्छा, देयर आर मेनी थिंग्स। तो अगर किसी का अच्छा है तो हम डायरेक्टली कहीं जॉब के लिए वगैरह भेज देते हैं, अगर नहीं है तो हम इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। तो सौरभ, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे मतलब, या हमें ऐसा लगता है वाइवा के बाद, तो हम डेफिनेटली आपको भेजेंगे। मुंबई में आप जहाँ रहते हैं उसके आजू बाजू जहाँ पे भी ट्रायल्स वगैरह हो रहे हैं वहाँ पे जनरली हम लोगों का ये कहना है कि साइट पे काम करना चाहिए, क्योंकि साइट पे आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। आपको इन्वेस्टिगेटर से कैसे बात करनी है, पेशेंट कंसेंटिंग कैसा होता है, और ये चीजें आपको बाद में काम आएगी जब आप CRA के लिए अप्लाई करते हो, या जब SAE होती है तो आप कैसे SAE को रिकंसिलेशन करते हो। तो ये सारे जो, या ISF क्या होता है, ISF को कैसे मैनेज करते हो। अगर आपको ISF मैनेज करना है तो आप TMF कर सकते हो, तो ETMF स्पेशलिस्ट के लिए आप जा सकते हो। सो एक जो आपका
इंटर्नशिप करके आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। पीपल मैनेजमेंट आपको पता चलेगा, थर्ड पार्टी के पास जाके कैसे काम करना है, एज यू आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल। तो ये सारी चीजें, इवन आपको एथिक्स कमेटी का भी काम देखने को मिल जाएगा। एज हॉस्पिटल कम्स अंडर कुछ तो एक इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी रहेगा ही। तो इस तरह से आपको फायदा होगा। 3 महीने बहुत ज्यादा नहीं होते, आपको सारी चीजें पता आएंगे और आप वो सारी चीजें आपके सीवी में भी डाल सकते। एंड दे विल गिव यू लाइक सर्टिफिकेट इन द सेंस एक लेटर मिलेगा कि किस पीआई के लिए आपने कौन सा स्टडी में इंटर्नशिप किया। बट माय पॉइंट क्लियर ऑल द डाउट्स सौरभ? Yes, ma'am. So don't worry about that. Just work hard or just study hard to get the theoretical knowledge. Because आप अगर देखोगे, आपने अगर क्लासेस अटेंड किए है तो हमने इस तरह से पढ़ाया है, लाइक अर्गस डेटाबेस हमने दिखाया है। अगर अभी मुझे लगता है आपका शायद पीवी शुरू हो गया होगा, तो आप आगे के क्लासेस में देखोगे हमने अर्गस डेटाबेस दिखाया है, हमने मेडिडेटा रेव भी आपको दिखाया है कि हम कैसे डेटा एंट्री करते हैं, डिस्क्रिपेंसी अगर आती है तो कैसे आती है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो कोई रिकॉर्डेड सिमिलर अभी शायद पीवी में वो होने का है और डेटाबेस आने का, सबसे लास्ट पार्ट डेटाबेस रहेगा। अभी वो लोग आपको ये सारी फार्माकोविजिलेंस क्या है, सिग्नल डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं, इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्टिंग क्या होता है, उसमें कौन से पैरामीटर्स है, रिसोर्स लाइक अगर हमें कोई केस मिलता है तो उसके सोर्सेस कौन हो सकते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई सोर्स, हाउ टू रिकंसिलेशन द एसएईज और क्या क्राइटेरियाज है, ये सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे। आखिर में हम आपको डेटाबेस, तो जनरली एरीज एंड अर्गस काफी यूज होता है, बट देयर आर अदर डेटाबेसेस। अब आप बोलोगे हर डेटाबेस में तो आप काम नहीं कर सकते, तो आपको उसी डेटाबेस पे या उस इवन अगर आप जैसे देखो पीवी का कंपनी ज्वाइन करोगे ना, देयर इज सम कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन विच इज वर्किंग ऑन द डेटाबेस विच आर नॉट यूज्ड बाय अदर कंपनीज। अगर आपको उस डेटाबेस का एक्सपीरियंस है, आपको दूसरे एज अ फ्रेशर, तो आपको दूसरे कंपनी में जॉब नहीं मिलेगा। बट अगर आपको पहला एक्सपीरियंस एरीज जी का या अर्गस का है तो आपको आगे चल के मतलब अगर ठीक है न्यू भी डेटाबेस है तो भी आपको मतलब चांस है कि आप उस पे काम कर सकते। तो आपको यही देखना है कि आपको मतलब किस चीज का एक्सपीरियंस लेना है आपके इनिशियल डेज। ये नहीं कि आपने बस चल गए उसका नाम इसका नाम, मेरा फ्रेंड जा रहा है मेरे घर के पास है, ये क्राइटेरियाज नहीं होने चाहिए जॉब ज्वाइन करते। Excuse me, ma'am. Yeah, ma'am. So, like, can I request you to send, like, can I send you my CV so that you can look at it once and tell me what? Today only I told you that because only I don't know anything about you. So, like, I am here. Like, अभी ऐसा भी हो सकता था कि मैं सौरभ का ही CV बना दूं या आपका ही CV मतलब बनाती मैं आप मेरे बदले, बट मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका नेचर कैसा है। सो हाउ कम आई मेक द ऑब्जेक्ट। अगेन प्रोफेशनल जो स्किल्स है जो मैंने डाले, अब आपने कोर्स किया है, मुझे नहीं पता कि आपको उसका कितना आता है। अननेसेसरी अगर मैं यही चीजें डाल दूं या आपको बोल दूं हाँ ये परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट फॉर मी। सी आपका परफेक्ट सीवी वो आपका रहेगा, आप में ये नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप ये सीवी बनाओगे और आप जाओगे इंटरव्यू के लिए, वहां पे अगर वो पूछते बताओ इंटरलिंक बिटवीन अमंग ऑल डोमेन्स, अब आपको वो नहीं आएगा। आप आपने लिखा तो है, तो आगे वाला बोलेगा आपने लिखा कैसे, या मैंने बोला मेरे लाइक आई एम वेरी ऑर्गेनाइज पर्सन, बट आपके बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा है आप उतना ऑर्गेनाइज नहीं हो, मेथोडोलॉजिकल नहीं हो, तो फिर वो क्या हो जाएगा, अरे पर्सन इज नॉट लॉयर, या ये चीज है। इसलिए आपको आपका खुद का स्वॉट एंड डोंट गो फॉर हेल्प कि हाँ चलो मैं इसकी हेल्प लेती हूँ, क्योंकि आगे वाले को आपको ढांचा नहीं बनाना है, आपको आपकी पर्सनालिटी सीवी में दिखानी है और आपका नॉलेज दिखाना है। सो जस्ट मैंने अभी आपको जो मतलब बताया वो पैटर्न रखो, बट चीजें अपनी ही डालो, लाइक ऑब्जेक्टिव अपना बनाओ और जितना सिंपल रख सकते हो एज अ फ्रेशर उतना रखो। आपने मार्केटिंग में क्या सीखा वो डालो। Okay, ma'am. Anybody wants to ask anything? So should I conclude today's session? So here we will like conclude our today's session. Tomorrow we will see cover letter. Bye bye. Thank you, ma'am.